آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے اور یہ پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر اس بچے کی طرف دیکھتے جو ان پوچھنے والوں کے ساتھ ہوتا تھا اور پھر فرماتے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو یہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے نہیں پائے گا کہ تم پر تمہاری قیامت ہو جائے گی۔ تشریح: اگر یہ بچہ زندہ رہا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس بچہ کے بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے سے پہلے تم سب وفات پا جاؤ گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا مذکورہ مدت کے عرصہ کے بعد ایک نسل کے خاتمہ اور ایک قرن یعنی عہد کے اختتام پذیر ہو جانے کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ ایک پوری نسل کا ختم ہو جانا اور ایک زمانہ کا اپنی مدت کو پہنچ کر اختتام پذیر ہو جانا ایک طرح سے قیامت ہی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو ساتھ کن تمہاری قیامت سے تعبیر فرمایا۔ اس حدیث کے سلسلہ میں زیادہ واضح بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ پوچھنے والوں نے قیامت کبریٰ کے بارے میں پوچھا، اور چونکہ ان کا یہ سوال ایسا تھا جس کا صحیح جواب دینا ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکیمانہ اسلوب میں مذکورہ جواب عنایت فرمایا۔ سات قم تمہاری قیامت، اس سے مراد بعض حضرات کے نزدیک قیامت صغریٰ یعنی پوچھنے والوں کا مر جانا ہے، اور بعض شارحین نے اس سے قیامت وسطیٰ مراد لی ہے، جس کا مطلب ان جیسی عمر رکھنے والے سب لوگوں کا مر جانا ہے، اور یہ طے ہے کہ یہ بات اکثر و غالب کے اقرار کے اعتبار سے آغاز سے قبل ایک نظر آج کی اہم سرخیاں۔ سرکاری اسکولز و کالجز میں طلبہ کو مل رہی معیاری تعلیم، 10ویں و انٹر کے نتائج اس کا منہ بولتا ثبوت۔ 10ویں اور انٹر ٹاپر کی ضلع کلکٹر نے کی گلپوشی۔ عیدگاہ قدیم بودر روڈ پر نماز عید الاضحیٰ ٹھیک 7:15 اور عیدگاہ جدید قلعہ میں ٹھیک 7:45 بجے کی جائے گی ادا۔ انشاءاللہ نماز سے آدھا گھنٹہ قبل عیدگاہ پہنچے، بیان سماعت کریں۔ عیدگاہوں میں عیدین کی نماز ادا کرنا عظیم سنت۔ عیدگاہ کمیٹی۔ بھیڑ بھاڑ والے بس اسٹینڈ کو ٹارگیٹ بنا کر خواتین کے گلوں سے طلائی زیورات اڑانے والی چور خاتون چڑھی پولیس کے ہتھے۔ قبضے سے 27 لاکھ مالیت کے زیورات پولیس نے کیے ضبط۔ آرمور میں سی پی کی پریس کانفرنس۔ چٹ فنڈز کمپنیوں کی لوٹ، عوام کے گاڑے پسینے کی کمائی لے کر کئی چٹ فنڈز کمپنیاں فرار، لیکن عہدیدار تماشبین۔ سرکاری اسکول و کالجز میں اچھی معیاری تعلیم دی جا رہی ہے۔ ضلع میں ایس ایس سی اور انٹرمیڈیٹ میں سرکاری مدرسوں کے بچے ٹاپر جو قابل ستائش ہے۔ ضلع کے ٹاپر طلبہ کی ضلع کلکٹر سی نارائن ریڈی کے ہاتھوں گلپوشی و شالپوشی۔ سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم پانے والے طلبہ پرائیویٹ اسکولوں کالجوں سے پیچھے نہیں کی مثال قائم کرنے والے طلبہ جو ضلع نمبرات سے امتحانات پاس ہونے والے طلبہ کو ضلع کلکٹریٹ کے چیمبر میں
तलबा की शालपोशी व गुलपोशी की गई और इनके हासिल करदा नंबरात के बारे में मालूमात हुए। इंटरमीडिएट और 10वीं जमात के टॉपर ज़हीन लड़की लड़कियों की सताइश करते हुए खुशी का इजहार किया। इंटरमीडिएट में सरकारी कॉलेज के तलबा की इस मेहनत और काविशों पर इन्होंने इंटरमीडिएट इंचार्ज रघुराज की शालपोशी की और इंटरमीडिएट टॉपर तलबा पी वैष्णवी, अरबिया मिर्जा, बी भाग्यश्री, के सविता, एल वसंता, ए श्रीनित्या, लक्ष्मी नरसिम्हा, मोहम्मद जुनैद अहमद, एम मेघना को जिला कलेक्टर ने गुलपोशी व शालपोशी की। जिले में एटपल्ली मंडल के एसएससी और इंटरमीडिएट में सरकारी स्कूलों के तलबा ने टॉपर किए जाने पर इन्होंने मुबारकबाद पेश करते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने तलबा से मुखातिब होते हुए बताया कि सरकारी स्कूल कॉलेजों में अच्छी तालीम दी जा रही और जिले के सरकारी स्कूलों में तलबा टॉपर निशानात ला रहे, जो काबिले फख्र बात है। तलबा इसी तरह आगे भी अच्छा दिलचस्पी से पढ़ लिख कर अपना मुस्तकबिल रोशन करे, खामखा सेल फोनों में अपना कीमती वक्त रायगर ना जाने दे और अपनी तवज्जो तालीम पर मरकूज रखे। बच्चों की तालीम को लेकर कितनी भी तकालीफ का सामना करने पड़े, माँ बाप अपने बच्चों की हिम्मत अफजाई करते रहे। इस मौके पर एटपल्ली कॉलेज प्रिंसिपल सुहासिनी, यकीन अली और स्टाफ भी मौजूद था। కళాశాలలో ముఖ్యంగా చాలామంది పిల్లలు మంచి కష్టపడి మంచి మార్క్స్ సాధించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారిని కలవడానికి, వారి అభినందనలు తీసుకోవడానికి మేము విద్యార్థులు మరియు పేరెంట్స్ మరియు ప్రిన్సిపాల్స్ మరియు లెక్చరర్స్ వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకుని వచ్చి సార్తో సెన్సిటేషన్ చేయించడం జరిగింది. పిల్లలందరికీ కూడా ఇది చాలా పెద్ద స్ఫూర్తిగా ఉంటుందని మేము భావిస్తున్నాము. వీరి జీవితంలో కూడా మంచి స్థాయికి చేరుకోవాలని కలెక్టర్ గారు వీళ్ళందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మేమందరం కూడా వచ్చే సంవత్సరానికి ఇంకా ఎక్కువగా కష్టపడి మేము స్టాఫ్ పిల్లలు। निजामाबाद जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव के चेयरमैन बनने के बाद अवाम की खिदमत में कामयाबी के 3 साल मुकम्मल। एमपीपी जिला सरपंच फोरम ओहदेदारों की जानिब से इस कामयाबी पर मुबारकबाद गुलदस्ते पेश किए गए। जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव के इख्तियार के 3 साल मुकम्मल होने पर जिला सरपंच फोरम, जिला सदर एटीएस श्रीनिवास, रिटायर्ड ओहदेदार और कायदीन ने मुबारकबाद पेश की। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने अपनी सियासी जिंदगी तेलुगु देशम की दौरे हुकूमत से शुरू की। इसके बाद अलहदा तेलंगाना की तहरीक में बिना किसी सियासी मुफाद के टीआरएस पार्टी से वाबस्ता हुए और अलहदा तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा किया। टीआरएस पार्टी में अवाम की खिदमत करते हुए सीएम केसीआर माकलूर मंडल के जेडपीटीसी बिला मुकाबला मुंतखब किए गए और सीएम केसीआर की नजर करम से जिला परिषद चेयरमैन मुंतखब हुए और अपने जेडपी चेयरमैन के 3 साल कामयाबी के साथ मुकम्मल करते हुए अवाम की नजर में कामयाब चेयरमैन कहलाए। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने बात करते हुए बताया कि सबकी ताउन से 3 साल कामयाब गुजरे। इन्होंने इस मौके पर कायदीन, ओहदेदारों और अवाम से इजहार तशक्कुर किया। जेडपी चेयरमैन बनाकर अवाम की खिदमत का मौका देने पर सीएम केसीआर, एमएलसी के कविता और जिले के एमएलए से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर माकलूर एमपीपी एम प्रभाकर, माकलूर मंडल सरपंच ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए फूलों के गुलदस्ते पेश किए। शहर में ट्रैफिक मसाइल की जल्द ही एकसुई की जाएंगी। रोडों पर अपनी गाड़ियां पार्किंग न करने, ट्रैफिक सीआई चंद्र राठौड़ का बयान। ट्रैफिक कानून पर अमल करने और जुर्मानों से बचने का मशवरा दिया। शहर के बस स्टैंड, गांधी चौक, खलीलवाड़ी के इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल काफी हद तक बढ़ गए हैं। आरटीओ ऑफिस के सामने सरस्वती नगर के इलाके में दवाखानों की तादाद में इजाफा होने और दवाखानों में आने जाने वालों की वजह से और दवाखाना मैनेजमेंट की जानिब से पार्किंग ना होने की वजह से ट्रैफिक में भी खलल हो रहा है। प्राइवेट दवाखानों में पार्किंग ना होने से और कारों की तादाद में बढ़ जाने से खलीलवाड़ी, गांधी चौक पर आम आदमी को रास्ता चलने को भी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर ट्रैफिक सीआई चंद्र राठौड़ से पूछे जाने पर इन्होंने बताया कि ट्रैफिक मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही और नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने पर इनके वालिदैन को बुलाकर काउंसलिंग दी जाते हुए इन पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और गाड़ियां चलाने वालों को हमेशा मुकम्मल कागजात अपने साथ रखने की ताकीद की और 2 पहियों वाली गाड़ियां चलाने वाले हेलमेट जरूर इस्तेमाल करने पर जोर दिया और बताया कि चौरास्तों पर सिग्नल और कैमरे सही काम कर रहे हैं। ट्रैफिक कानून को अमल ना किया जाने पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। जुर्माने वक्त पर ऑनलाइन के जरिए अदा करें।
చెక్ చేసిన దాంట్లో మైనర్ పిల్లలు ఉంటే ఇందాక మీరు చూశారు, ఒక 2 వెహికల్ డిటైన్ చేసేసాను నేను. అవి కూడా స్టేషన్ పంపిస్తున్నాను. వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత మైనర్ పిల్లలు నడిపితే ఏ విధంగా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఎలాంటి ప్రాణాలు పోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి, మరి వాళ్ళ యూత్ పిల్లలు, చిన్న పిల్లలు, వాళ్ళకు జరిగే నష్టాల గురించి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు వివరించి చెప్పి మైనర్ డ్రైవింగ్ కింద 1600 రూపాయల ఫైన్ను వేయడం జరుగుతున్నది. ఆ 1600 వాళ్ళ పేరెంట్స్ కట్టుకుంటారు, అది మీ సేవలో కట్టుకుంటారు. ఆ విధంగా నిత్యము ఏదో ఒక చోట చేస్తూనే ఉన్నాము. కెమెరా విషయానికి వచ్చేస్తే ట్రాఫిక్ సంబంధించినవి 16 కెమెరాలు ఉన్నాయి. అవి 24 जिले में चिटफंड कंपनियों की मनमानी पर ओहदेदार खामोश तमाशाई, अवाम की मेहनत के पैसे वापस दिलाने और इन पर एक्शन लेने अवाम का मुतालबा। जिले की कंटेश्वर इलाके में अक्सर चिटफंड कंपनी चिट्ठी डाले गए मेम्बरान इनके पैसे वापस देने के लिए टाल मटोल करते हुए झूठे वादे करते हुए अवाम को परेशान कर रहे। चिट्ठी के पैसे वापस न दिए जाने पर मेम्बरान ने बरहम होते हुए चिटफंड कंपनी का फर्नीचर तोड़फोड़ कर दिया। इस दौरान चिट्ठियां डलवाकर चिटफंड कंपनियां अवाम को भरपूर डुबो रही है। कुछ ही दिन पहले इसी तरह भविता श्री चिटफंड कंपनी मालिकीन रातों रात शटर बंद करके गायब हो गए, जिससे अवाम की परेशानियों में इजाफा हो रहा है और पुलिस ओहदेदार महुए ख्वाब में रहते हुए अक्सर चिटफंड के फर्नीचर की तोड़फोड़ पर चिटफंड कंपनी के मालिकीन ने चिट्ठी कुनिंदगार को उल्टा बुरा भला कहा और 100 डायल करने पर पुलिस आकर परेशान हाल मेम्बरान को समझा बुझाकर मामला हल कर लिया, मगर इस चिटफंड कंपनी पर कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस को चाहिए कि ऐसी चिटफंड कंपनियों पर सख्ती बरतते हुए गरीब लोगों के चिट्ठी के पैसे वापस दिलाकर इंसाफ करे। చిట్టి అంటే చిట్టి ఇస్తలేడు అసలుకి. ఈ స్టాఫ్ అందరూ మొత్తం మీదికి వచ్చిండ్రు. చిట్టి మనని అడిగితే ఇయ్యం పోండి, వీళ్ళ స్టాఫ్ అక్షర చిట్ఫండ్ స్టాఫ్ చిట్టి ఇయ్యండి అని మేము 3 నెలలు 4 నెలలు రోజు వస్తే రోజు ఏదో ఒక సాగు చెప్తున్నాడు వాళ్ళ మేనేజర్. వాడు ఇప్పుడు రమ్మంటే రేపు వస్తాను అన్నాడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు జ్వరం వచ్చింది, నేను రాను అని చెప్పిండు. 5 లక్షలు చెప్తే 4 లక్షలు వచ్చినాయి. దాన్ని మొత్తం 3-4 నెలల నుంచి నింపుతున్నాడు. కవితా కంప్లైంట్స్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చినాము, ఆయన కూడా మేము ఇస్తామని చెప్పిండు. ఇచ్చిందే లేదు. వాళ్ళు మరి చిట్టి ఇయ్యండి అంటే మీరు ఏం చేస్తారో చేసుకోండి, చిట్టి ఇయ్యము ఏమి ఇయ్యము, మీతో నైంది చేసుకోండి అని చెప్తున్నారు. మరి కాదు మేము 3 నెలల క్రితమే లేమినాం. ईदगाह कदीम बोधन रोड पर नमाज ईद उल अजहा ठीक 7:15 और ईदगाह जदीद खिलाफ नमाज ईद उल अजहा ठीक 7:45 पौने 8 बजे अदा की जाएंगी इंशाअल्लाह। मुफ्ती सईद अकबर साहब दामत बरकातुम से मशवरे के बाद ईदगाह कमेटी का ऐलान, नमाज से आधा घंटा कबल ईदगाहों को पहुंचे और बयान समाप्त करें ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो और इबादतों और दुआओं में लुत्फ पैदा हो। अल्लाह की तरफ रग़बत ही हमारा असल मकसद होना चाहिए। दीन से दूरी आज मुसलमान हाशिए पर है, लिहाजा ईद की नमाज से आधा घंटा कबल मुसल्लियान बावजू मार जाए नमाज ईदगाह को पहुंचे। मुफ्ती सईद अकबर साहब को ईदगाह कमेटी दर्दमंदाना अपील। शहर की दोनों ही ईदगाहों, ईदगाह कदीम व ईदगाह जदीद का ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन ने कमेटी जिम्मेदारों के साथ दौरा करते हुए तैयारियों का जायजा लिया और नमाजियों की सहूलतों के लिए खास इंतजामात के इक़दाम किए जाने का इजहार किया और बताया कि मुफ्ती सईद अकबर साहब दामत बरकातुहू इमाम व खतीब जामा मस्जिद व ईदगाह जदीद से मशवरे के बाद ईदगाह कमेटी ने ईद उल अजहा की नमाज का वक्त तय किया और बताया कि ईदगाह कदीम बोधन रोड पर नमाज ईद उल अजहा ठीक 7:15 और ईदगाह जदीद खिला में नमाज ईद उल अजहा ठीक 7:45 पौने 8 बजे अदा की जाएंगी। तमामी हजरात अपने साथ जायनमाज लाए और बावजूद घर से निकले। सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन ने मजीद कहा कि मुफ्ती सईद अकबर साहब ने तमामी नमाजियों से दर्दमंदाना अपील की कि वो नमाज के वक्त से आधा घंटा कबल ईदगाह को पहुंचे और बयान समाप्त करें, बयान सुने ताकि अल्लाह और दीन की बात हमारे दिलों में उतरे और हमें नमाज, इबादतों और दुआ में लुत्फ आए।
अल्हम्दुलिल्लाह आज ईदगाह कमेटी जदीद व ख़दीम का इजलास हुआ। इस इजलास में ये तय हुआ कि मुफ्ती साहब से मशवरा किया जाए कि ईद उल अज़हा जो कि इंशाअल्लाह इतवार के दिन होगी 10 जुलाई को, तो वक्त औक़ात के ताल्लुक़ से मशवरा किया जाए। तो हम लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के इजलास पे हाज़िर हुए और उनसे मशवरा करने के बाद में ये तय किया गया कि ख़दीम ईदगाह में 7:15 पर नमाज होंगी और इंशाअल्लाह जदीद ईदगाह में 7:45 पे। याद रखिए, ख़दीम ईदगाह बोधन रोड पे 7:15 पर और जदीद ईदगाह खिला 7:45 पर। और आवाम से खुसूसी जो मुसल्लियान इकराम हैं जो ईदगाह तशरीफ़ ला रहे हैं, उनसे मुफ्ती सईद अकबर साहब दामद बरकातहुम की एक दरख्वास्त है कि आप लोग कम से कम आधा घंटा पहले ईदगाहों में मौजूद रहें। यानी 6:45 पे ख़दीम ईदगाह में और 7:15 को जदीद ईदगाह में मौजूद रहें, ताकि जो बयान होता है वो बयान को समाअत फरमाएँ और आधे घंटे के अंदर आपका जो जहन है, आपका जो जिस्म है, वो इबादत करने के लिए राग़िब हो जाए। तो आपको नमाज में भी मज़ा आएगा, खुतबे में मज़ा आएगा, दुआ में मज़ा आएगा। आप लोग 2 मिनट 5 मिनट पहले आते हैं, आपका जहन माहौल बनता नहीं है, 5 मिनट में नमाज ख़त्म हो जाती है। तो मुफ्ती साहब की दरख्वास्त ये है मुसल्लियों से कि वो कम से कम आधा घंटा पहले ईदगाह पहुँच जाएँ। तो आपसे ये दरख्वास्त है मुफ्ती साहब की और ईदगाह कमेटी की कि आप लोग दोनों ईदगाहों में जो वक्त तय है उससे एक आधा घंटा पहले आप पहुँच जाएँ इंशाअल्लाह। और तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि आते वक्त ईदगाह में जो है ना आप लोग वज़ू करके अपने घरों से निकले और साथ में जानिमाज़ लेके आएँ। यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है, तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलहदा इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने, आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस, नोरा फैशन, बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के, सूट्स, चुंदरी, लेगिंग, दुपट्टा, स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स, बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी, खतरी, दुबई, तुर्की, लिबनानी, सऊदी बुर्का व अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। मियारी क्वालिटी, वाजिबी दाम, फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। ईदेन की नमाज ईदगाहों में अदा करना अजीम सुन्नत है और अल्लाह ने ईदेन की नमाज ईदगाहों में अदा करने में बड़ी फजीलत, हिकमत और मुसल्लत पोशीदा रखी है। लेकिन ईदेन बिलखुसूस ईद उल अजहा के मौके पर हम कुर्बानी जल्दी करने के चक्कर में ईद उल अजहा की नमाज मसाजिद में अदा करते हैं, जो कि खिलाफ सुन्नत है और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत को पामाल करने वाले बन रहे हैं। जबकि मसाजिद में ईद की नमाज की इजाजत सिर्फ ज़ईफों, मरीजों और कमजोरों को है। लिहाजा हम ईद की नमाज ईदगाहों में अदा करें। रुकने शोरा दारुल उलूम देवबंद व सदर जमीयतुल उलमा मालेगांव के बयान का हवाला देते हुए सदर ईदगाह कमेटी ने मुसलमानों से पुरखुलूस अपील की। अल्फाज मेरे नहीं हैं, मौलाना इस्माइल साहब सदर जमीयतुल उलमा मालेगांव और रुकन शोरा दारुल उलूम देवबंद के अल्फाज हैं, वो मैं दोहरा रहा हूँ। उस खुतबे का खुलासा है
ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज़ें ईदगाह में अदा करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है, जिसमें बहुत से हिकमतें और मसलिहतें पोशीदा हैं। लेकिन आजकल ईद उल अज़हा की नमाज मस्जिदों में अदा करने का रिवाज आम हो गया है, जबकि मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त सिर्फ बूढ़ों, कमज़ोरों और मरीज़ों के लिए है। लोग इस इरादे से कि कुर्बानी जल्द कर दे मस्जिद में नमाज अदा कर लेते हैं। ये तरीक़ा खिलाफ सुन्नत है। क्या हम नौज़ बिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा समझदार उनसे बड़ी कुर्बानी करने वाले हैं, जो अपनी मस्जिद नबवी, जिसमें एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर मिलता है, वो छोड़कर ईदगाह जाते थे। ज़रा गौर करें कि हम कितनी अहम सुन्नत को पामाल कर रहे हैं और इस्लाम के एक अहम हिकमत भरे हुक्म को हल्का कर रहे हैं। और फिर एक दो मस्जिदें नहीं, शहर की तकरीबन तमाम मस्जिदों में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाती है। क्या ये एक अजीम सुन्नत को ठुकराना नहीं है? होना तो ये चाहिए कि शहर के कुछ मस्जिदों में सिर्फ बूढ़ों और मरीज़ों के लिए ईद की नमाज का इंतज़ाम कर दिया जाना और बाकी सारे लोग ईदगाह में नमाज अदा करते। जो ट्रस्टियान अपनी मस्जिदों में ईद की नमाज का इंतज़ाम करवा रहे हैं, वो लोग भी तर्क सुन्नत के गुनाह में शरीक हो रहे हैं और एक गुनाह में आनत कर रहे हैं। शहर इस अजीम सुन्नत की तर्क में मशगूल है और किसी को इसका दुख भी नहीं होता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इतनी बड़ी सुन्नत धड़ल्ले से पामाल की जा रही है। हो सकता है हम पर जो हालात और परेशानियां मुसल्लत हैं वो इस इज्तिमाई तर्क सुन्नत की वजह से हों। लिहाजा तमाम लोगों से तर्क सुन्नत के गुनाह से बाज आएँ और ईद की नमाज ईदगाह में ही अदा करें। रही कुर्बानी को जल्द अदा करने की बात, तो कभी भी अदा की जा सकती है, चाहे घंटा 2 घंटा देर से हो या दूसरे या तीसरे दिन अदा की जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जो शख्स सादात के ज़माने फितनों के दौर में मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा, उसको 100 शहीदों के बक़द्र सवाब मिलेगा। तो इसलिए ईद की नमाज ईदगाहों में पढ़ने की सुन्नत को ज़िंदा करने का इरादा करें इंशाअल्लाह। ये अल्फाज मेरे नहीं, मौलाना इस्माइल साहब के हैं, जो देवबंद के रुकन शोरा हैं और जमीयत उलमा मालेगांव के सदर भी हैं। तो मेरी भी ये दरख्वास्त है कि आप तमाम मुसलमानान निज़ामबाद से दरख्वास्त है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईदगाहों के अंदर नमाज़ पढ़ें। इसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत, मसलियत है, ये समझना हमको बहुत ज़रूरी है। अल्लाह आप तमाम अहबाब को जज़ाए खैर अता करे, आमीन। भीड़ भाड़ वाले बस स्टैंड को निशाना बनाते हुए खवातीन के गलों से तलाई जेवरात उड़ाने वाले खातून चोर लक्ष्मी चढ़ी पुलिस के हत्थे। कब्जे से 27 लाख मालियत के तलाई जेवरात पुलिस ने किए बरामद व जब्त। आरमूर बस स्टेशन में मुसाफिरों से तलाई जेवरात उड़ाने वाली लक्ष्मी को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 27 लाख रुपयों के जेवरात बरामद। आरमूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागाराजू ने मुनाफिक किया, जिसमें 32 साल लक्ष्मी को मीडिया के सामने पेश किया गया। इस मौके पर निजामाबाद CP KR नागाराजू ने खिताब करते हुए बताया कि शहर निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली लक्ष्मी गुज़िश्ता चंद दिनों से आरमूर बस स्टेशन में खातून मुसाफिर के पास से तलाई जेवरात की चोरी कर रही थी। इस खातून ने 13 चोरियां की। आरमूर असिस्टेंट ऑफ पुलिस ACP प्रभाकर राव की टीम ने पीर की शाम लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से 55 तोले तलाई जेवरात को बरामद कर लिया गया, जिसकी मालियत 27,50,000 रुपये है। ये खातून मुसाफिर के हमरा सफर करते हुए इनकी हैंडबैग से तलाई जेवरात चोरी कर रही थी। लक्ष्मी कई दिनों से आरमूर बस स्टेशन से दूसरे मुकामत पर जाया करती थी और बस में खवातीन मसरूफ होने पर इनके हैंडबैग से चोरियां करना इसका मामूल बन चुका था। कई खवातीन आरमूर पुलिस स्टेशन में चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। IPC 258/2022 U सेक्शन 379 के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया। आरमूर ACP प्रभाकर राव के हमरा SI प्रदीप कुमार, सब इंस्पेक्टर श्रीकांत के अलावा पुलिस जवानों ने पकड़ने में मदद की। निजामाबाद CP KR नागाराजू ने इस पुलिस टीम में काम करने वाले नौजवानों को अवार्ड दिया। అందులో ప్రత్యేకంగా ఇంకా చిన్నపిల్లలు సంఖ్యలో ఉంటే వాళ్ళు ఏంటంటే పిల్లల మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపెడతారు తల్లి. సో అలాంటి దాంట్లో ఎక్కడం వారిని టార్గెట్ చేసుకొని లేడీస్కి ఉన్న వీక్నెస్ ఏంటంటే మహిళలకు ఒక బ్యాగ్లో మళ్ళీ చిన్న పర్స్ ఒకటి పెట్టి అందులో గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ పెడతారు, ఏంటంటే సేఫ్ ఉంటుందని. సో ఆ టెక్నికల్గా ఏమే ఆ బ్యాగ్ను ఓపెన్ చేసి ఆ చిన్న పర్సే తీసుకుంటారు. ఇట్లా మనకు సుమారుగా 14 కేసులలో ఈరోజు
ఆమె కన్ఫ్యూజ్ చేయడం జరిగింది. టోటల్గా ఈరోజు మన అమౌంట్ వచ్చేసి సుమారుగా 27,50,000 వర్త్, అంటే 50 తులాలు. ఇంకా కొంచెం బ్యాంక్లో ఆమె ఓన్ అకౌంట్ పేరు ఉంది ఒకటి బ్యాంక్లో, ఆ బ్యాంక్లో కూడా పెట్టింది. ఎందుకంటే ఈమెను మళ్ళీ కస్టడీ తీసుకొని ఆ మిగతా బ్యాంక్లో పెట్టిన తనఖా పెట్టిన అవి వాటిని కూడా రికవర్ చేస్తాం. ఈ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ కాబట్టి వాళ్ళు ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చారు, మనం తీసుకుపోయే ఎఫ్ఐఆర్ చూడగానే ఇలా. चंद्रशेखर कॉलोनी 100 फीट सड़क पर रॉयल फोर्ट चिकन सेंटर का शानदार इफ्तिताह नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, राइफल शूटिंग एसोसिएशन सदर बोबली नरसैया, बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन सदर जावेद खान के हाथों ग्राहकों को सफाई के साथ सेहत बख्श चिकन की फराहमी में रॉयल चिकन सेंटर इंतजामिया की खिदमत काबिले सताइश, अवाम इस्तेफादा हासिल करे। नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी का इजहार। शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी की 100 फीट रोड पर रॉयल चिकन सेंटर इंतजामिया की जानिब से रॉयल फोर्ट चिकन सेंटर का शानदार आगाज किया गया। रॉयल फोर्ट चिकन सेंटर की इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने शिरकत की। इनके अलावा राइफल शूटिंग एसोसिएशन सदर बुबली नरसैया, बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन सदर जावेद खान ने शिरकत की। रिबन काटते हुए रॉयल फोर्ट चिकन सेंटर का इफ्तिताह किया और मुबारकबाद दी। मेहमानान का रॉयल चिकन सेंटर इंतजामिया मोहसिन खान, नजीर खान ने इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की। इस मौके पर सैयद शन्नू, सैयद फैसल, मोहम्मद मुजम्मिल, अफरोज खान, रियाज, अजहर व दीगर भी मौजूद थे। मेहमानान ने चिकन सेंटर का जायजा लिया और साफ सुथराई के साथ मुतवाजन और सेहत बख्श चिकन व अंडे ग्राहकों को फराहम करने पर मुबारकबाद दी। अवाम से रॉयल चिकन सेंटर इंतजामिया की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि चिकन का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुफीद और फायदा बख्श है। भीमगल तहसीलदार की हैसियत से श्रीधर ने लिया ओहदे का जायजा। भीमगल उर्दू सहाफियों की नए तहसीलदार से खैर सगाली मुलाकात और तबादले ख्याल किया। हल्का असम्बली बारकुंडा के उर्दू सहाफियों की जानिब से भीमगल के नए तहसीलदार की आमद पर खैर सगाली मुलाकात करते हुए तहसीलदार जनाब श्रीधर साहब को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनकी शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस मौके पर उर्दू सहाफी मोहम्मद सादिक मुंसिफ, मोहम्मद अब्दुल मुसव्विर, रहनुमाए दक्कन, मोहम्मद शकील महबर, मुश्तबा याफई, मोहम्मद अब्दुल मुखीब, मोहम्मद अब्दुल रफीक के अलावा दीगर सहाफी मौजूद थे। कंदापुर्ती गांव की उर्दू मीडियम तालिबा को रियासत भर में एसएससी में अव्वल मुकाम हासिल। सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम हासिल हो सकती है। रेंजल मंडल एमईओ, एमपीओ, एमडीओ का बयान। रेंजल मंडल की कंदापुर्ती गांव की रहने वाली माहिन बेगम एसएससी उर्दू मीडियम की तालिबा रियासती तौर पर अव्वल मुकाम हासिल किया और जवेरिया खानम एसएससी की तालिबा मंडल सतह पर अव्वल मुकाम हासिल किया, जिस पर मुकामी सरपंच कलीम बेग की क़ियादत में इन तलबा की शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर मंडल एमईओ गणेश राव, एमपीडीओ शंकर, एमपीओ गौस मोइनुद्दीन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए बताया कि सरकारी स्कूलों में अच्छी मियारी तालीम दी जा रही है, जिसके बिना पर उर्दू मीडियम तलबा भी रियासत में अव्वल आ रहा है, जो बहुत ही फख्र की बात है। अव्वल आने वाले तलबा की मिसाल लेते हुए दीगर तलबा भी अपने आप तालीमी मैदान में आगे आए और अपना मुस्तकबिल संवारे। सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल के मुकाबले अच्छी तालीम दी जा रही है। అంటే మాహిన్ బేగం అమ్మాయి ఉర్దూ మీడియంలో మొత్తం మీద మనకి స్టేట్లో 9.7 తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిలబడటం ముఖ్యంగా రెంజల్ మండలానికి సంబంధించి మా విద్యాశాఖ పక్షాన అమ్మాయికి అభినందిస్తూ మరి నేటి కార్యక్రమంలో ఈ గ్రామస్తులందరూ కూడా కలిసి స్టేట్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించినటువంటి మాహిన్ బేగం అమ్మాయికి గ్రామస్తులందరూ కూడా తమ శాయశక్తుల అమ్మాయికి ఈరోజు అభినందించడం జరిగింది। అదేవిధంగా మరి ఈ కార్యక్రమంలో గౌరవనీయుడు ఎంపీడీఓ గారు అదేవిధంగా ఎంపీఓ గారు కూడా అమ్మాయిని అభినందించారు। सीजनल बीमारियों की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम लिए गए हैं और पीने के पानी और साफ सफाई को लेकर खुसूसी इंतजामात को अमल में लाया गया। रेंजल मंडल एमपीडीओ गौस मोइनुद्दीन का बयान। रेंजल मंडल के दुपल्ली कोनापल्ली गांव में एमपीओ गौस मोइनुद्दीन एमपीडीओ ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट श्रीनिवास के हमरा दौरा किया। जिला कलेक्टर के हुक्म के मुताबिक गांव का दौरा करते हुए गुज़िश्ता परिप्रगति के तहत किए गए कामों का जायजा लिया। हरितालाम के तहत लगाए गए पौधों की नशनुमा, नर्सरी, शमशान घाट और साफ सफाई के कामों के मुताबिक पूरे गांव में दौरा करते हुए जायजा लिया
और पीने के पानी के लिए टांकियों को ब्लीचिंग पाउडर से अच्छा धोने का पंचायत सेक्रेटरियों को मशवरा दिया। इस मौके पर मंडल एमपीओ गौस मोइनुद्दीन ने बात करते हुए बताया कि जिला कलेक्टर के हुक्म के मुताबिक सीजनल बीमारियों की रोकथाम के लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों में साफ सफाई पर खुसूसी ध्यान दिया जा रहा है। अगर कोई मसाइल पेश आए तो फौरन हमें मुतल्ला किए जाने पर मसाइल की यकसुई की जाएंगी। इस मौके पर इनके हमरा पंचायत सेक्रेटरी साइलू, नरेश, तमानियत रोजगार ओहदेदार और सफाई मजदूर भी मौजूद थे। ఈ పల్లె ప్రగతి భాగంలో అదేవిధంగా మన దీపల్లి అండ్ కొన్నపల్లి విజిట్ చేయడం జరిగినది. అదేవిధంగా అందులో నర్సరీ కానీ, డంపింగ్ యార్డ్ కానీ, అదేవిధంగా క్రిమటోరియం, రెవెన్యూ ప్లాంటేషన్, అదేవిధంగా శానిటేషన్ పరంగా ఈ సీజనల్ వ్యాధులు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి, వర్షాలు పడుతున్నాయి, దాని యొక్క దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని సూచనలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. షెడ్ ప్రకారం షెడ్కి కూడా కొన్ని సూచనలు ఇచ్చి ఏ విధంగా ఇట్లా చేయాలా సెగ్రిగేషన్ అని ఆ విధంగా సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. నర్సరీలో కూడా మొక్కలు, పెద్ద మొక్కలు కానీ అవి మొత్తం రెవెన్యూలో మొత్తం ఫిల్అప్ చేసామని చెప్పడం జరిగింది. చిన్న హోమ్ స్టేట్ కూడా మొత్తం ఏ విధంగా అయితే హోమ్స్కి అన్నీ ఇవ్వడం కొన్ని ఇచ్చారు. అదే इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सरकारी स्कूल्स व कॉलेजेस में तलबा को मिल रही मियारी तालीम, 10वीं व इंटर के नताइज इसका मुंह बोलता सबूत। 10वीं और इंटर टॉपर की जिला कलेक्टर ने की घोषणा। ईदगाह मदीन बोधन रोड पर नमाज़े ईद उल अज़हा ठीक 7:15 और ईदगाह जदीद किला में ठीक 7:45 बजे की जाएगी अता। इंशाअल्लाह नमाज से आधा घंटा कबल ईदगाह पहुंचे, बयान समाअत करें। ईदगाह में ईदैन की नमाज अदा करना अजीम सुन्नत। ईदगाह कमेटी। भीड़भाड़ वाले बस स्टैंड को टारगेट बनाकर खवातीन के गलों से तलाई जेवरात उड़ाने वाली चोर खातून चढ़ी पुलिस के हत्थे। कब्जे से 27 लाख मालियत के जेवरात पुलिस ने किए जब्त। आरमूर में सीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चिट फंड्स कंपनियों की लूट, अवाम के गाड़े पसीने की कमाई लेकर कई चिट फंड्स कंपनियां फरार, लेकिन ओहदेदार तमाशबीन।